بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ تمام کا میتھس فرینڈ رئیس الدین قاضی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل قاضی RR پر آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، میں آپ تمام سے مخاطب ہوں NTS 2019 میٹ پیپر کے لاسٹ 10 کوسچن کے ساتھ۔ اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ کو پچھلے 9 ویڈیوز دیکھنا ہے تو آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں جا کر پچھلے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، میرا یہ ویڈیو کوسچن نمبر 91 سے 100 تک کوسچنز کو اس میں نے سولو کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے میٹ کے ان کوسچنز کو سولو کیا جاتا ہے۔ آپ میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور جو اسٹوڈنٹس ہماری یوٹیوب چینل پر فرسٹ ٹائم جوائنٹ ہوئے ہیں، ایسے تمام اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل قاضی RR کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر ایجوکیشنل ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ میتھمیٹیکل کوڈ لینگویج اگر ایک ریاضیاتی اشاریے کے مطابق 88 - 7 39 ہوتا ہے، 77 - 6 41 ہے، 99 - 5 74 ہے، تو آپ کو یہ فائنڈ کرنا ہے۔ دیکھیے کہ ایک کوڈنگ لینگویج ہے یہ، اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ ڈفرنس 39 آ جائے۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر آپ اس کو مائنس کریں گے تو نہیں جمے گا، آپ الگ الگ طریقے سے گیس کرنے کی کوشش کریں۔ 77 - 6 41 کب ہوگا؟ ایسا نہیں کہ یہیں سبسٹریکٹ کرنا ہو، اس کا مطلب مائنس سائن، یہ کوڈنگ لینگویج ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن جب ہم اس پر سوچتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 7 کے اسکوائر کو اگر ہم اس میں سے مائنس کریں تو دیکھتے ہیں کیا آتا ہے۔ 88 - 7 کریں آپ تو کیا بچے گا؟ 88 - 7 اسکوائر میں 49، سو 18 - 9 9 ہی ہوگا، 7 - 4 23۔ یہ لاجک اس میں صحیح بیٹھ رہا ہے۔ آپ اسی کو بھی دیکھ لیں، 77 - 6 اسکوائر 36، تو بچے گا 14۔ اس طرح سے اب آپ یہاں 2 ہم نے ٹیلی کر لیا، اس کو تیسرے کو دیکھ لیں، اس میں ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ 55 - 4 کا اسکوائر 16 کر دیں، 55 - 16 تو آپ کو آنسر ملے گا 15 - 6 یعنی 9، اور 4 - 1 is 3، سو 39 اس کا کریکٹ آپشن ہوتا ہے۔ Students, now we switch over to the question number 92. Again same type کا question ہے، mathematical code language، لیکن وہی یہاں نہیں لگے گا، ضروری نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پلس سائن بولے تو پلس ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر جیسے لاجک تھا کہ یہاں سائن مائنس برابر تھی، لیکن یہاں پر 6 کو اشارہ کس میں دیا تھا؟ یہ کوڈ تھا کہ اس کا اسکوائر مائنس کریں۔ اب یہاں دیکھتے ہیں، اگر ہم سمپلی اس کو ایڈ کریں تو 14 ہو جائے گا اسٹوڈنٹس، اور اگر 14 کو 3 سے ڈیوائڈ کریں تو 14 ملٹیپلائی کریں، 14 3 = 42 ہوتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ 5 + 7 15، اور پھر اس کو آپ 7 + 5 12، تو 12 کا کو کتنا بھی ملٹیپلائی کریں آپ تو 30 نہیں آئے گا، اور یہ 9 + 3 12 ہوتا ہے، 12 2 = 24۔ لیکن یہاں 2 پر یہ صحیح بیٹھ رہا ہے، لیکن یہاں پر صحیح نہیں بیٹھ رہا ہے، تو پھر کیا لاجک ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹس؟ تو دیکھیے دوسرا یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم پلس کو انٹو مان لیں، تو 8 6 = 48 ہوگا، 8 6 = 48، اور مائنس یہ 6 کر دیں تو 42 آتا ہے۔ 7 5 = 35، اور مائنس یہ 5 کریں تو 30 آتا ہے۔ 9 3 = 27 کریں، مس یہ کوڈنگ لینگویج ہے، پلس نہیں انٹو ہے، تو 27 میں سے 3 مائنس کریں تو 24 آئے گا۔ اسی طرح 6 4 = 24 ہوگا، اس میں سے آپ 4 مائنس کر دیں تو آنسر 20 آئے گا۔ My dear students, we are solving NTS 2019 MAT paper. This is last video. Now, this figure is given. It is made by arranging the cubes, each having 1 unit side, each side having 1 unit. ایک یونٹ سائڈ کے کیوبس کو ارینج کر کے یہ فگر بنی ہوئی ہے، اینڈ اٹ از پینٹڈ فرام آل آؤٹ سائڈس، اس کی سبھی باہر کی جتنی سرفیس ہے اس کو پینٹ کیا گیا ہے۔ آپ کو کوشچن نمبر 93 سے 95 تک اس پر سولو کرنا ہے۔
Now see the question number 93. Maximum how many faces of a cube are painted? क्यूब के मैक्सिमम कितने फेस पेंटेड हैं? तो आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 ये जो क्यूब है इसके 3 फेसेस पेंटेड है। दिस साइड आउटसाइड है, आउटसाइड ये भी पेंटेड, ये भी आपको पेंटेड नज़र आ रहा है। मैक्सिमम 3 फेसेस पेंटेड है, ये इसका आंसर होगा। सिंपल। आप बताइए, इससे ज़्यादा तो मुमकिन नहीं है। जितने भी देखेंगे आप कि ये जो क्यूब्स हैं इनकी 2 ही साइड है, ये क्यूब्स हैं इनकी भी 3 साइड्स होगी। मैक्सिमम जो अरेंज करने के बाद 3 साइड नज़र आ सकती है किसी क्यूब की मैक्सिमम, और वही पेंटेड होगी। हाउ मेनी क्यूब्स हैव एट लीस्ट 2 फेसेस कलर्ड? क्वेश्चन नंबर 94। कम से कम 2 फेसेस पेंटेड हैं, ऐसे कितने क्यूब्स हैं? तो ज़रा इसको समझ लें आप। एटलीस्ट 2 फेस, इसका मतलब कि 3 भी है तो भी इसको आपको काउंट करना है। कम से कम 3 में, ज़्यादा भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसको काउंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप 2 फेसेस वाले काउंट कर लें स्टूडेंट्स, कितने होते हैं ये बॉर्डर पर। चलिए इस तरह स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ का एक क्यूब चला गया है, ये 1 2 3, इसी तरह इस एज पर 3, पीछे के एज पर 3 और इस एज पर 3, टोटल 3 4 यानी 12 तो ये हो गए, ये 12 फेसेस। समझ रहे हैं आप, मैं जैसे बताना चाह रहा हूँ। ये लाइन को पकड़ लें 3, देखिए इसके 2 फेस, इसके 3 फेस 2 फेस 2 फेस 3 फेस 3 फेस 2 फेस 3 फेस, है ना। 3 3 6 3 3 3 चौक 12, टोटल ये 12 हो गए स्टूडेंट्स। अब सिर्फ 2 फेस वाले आपको दिखेंगे, वो कौन कौन से हैं ये देख लीजिएगा। ये 2 फेस वाले, ये 2 4 6 तो 8, इस तरह से ये टोटल 8 ये हो गए। अब नीचे में देखें आप कि ये क्यूब्स जो हैं इनकी पीछे की नीचे की फेस और ये फेस आउटर फेस हैं, 2 फेस पेंटेड, इधर चारों भी साइड में आपको 2 फेसेस पेंटेड में, टोटल 8 ये हो गए। इस तरह टोटल हो जाएगा 28 क्यूब्स ऐसे हैं जिनके एटलीस्ट 2 फेस पेंटेड हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 95। हम क्वेश्चन नंबर 95 को देख रहे हैं। हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली 1 फेस पेंटेड? सिर्फ एक फेस, कम से कम एक नहीं है, सिर्फ एक फेस। इसमें फ़र्क होता है, कम से कम एक होता मतलब 2 फेस पेंटेड भी चलेगा, 3 फेस पेंटेड भी चलेगा, यहाँ सिर्फ ओनली 1 फेस। तो 1 फेस वाले आपको देखने पड़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 फेस वाले कितने होंगे तो आप देख लीजिएगा। ये जो क्यूब है सिर्फ इनकी एक ही सरफेस नज़र आ रही है, ये टोटल एक फेस पर 4 हैं। तो ऐसी टोटल ये जो फिगर बनी है इसकी 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस पर कितना होगा, एक फेस पर 4, तो 6 फेसेस पर 24। इस तरह से स्टूडेंट्स 24 ये करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्यूब्स हैं जिनके सिर्फ ओनली 1 फेस पेंटेड हैं। स्टूडेंट्स यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 96 and 97 on this instruction that a square piece of paper is cut in a specific manner and when it is unfold so it will match which one of the 4 alternative। तो ये कौन से 4 में से एक अल्टरनेटिव से मैच होगा। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर बीच में स्क्वायर बनेगा, ये साइड नज़र आ रही है इस तरह से। अगर ये क्रॉस होती तो हम बोलते इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनता, रोम्बस बनता, लेकिन यहाँ स्क्वायर बन रहा है इसलिए ये 2 फिगर कट हो गई। यहाँ स्क्वायर और फिर डिसाइड करें दूसरा पार्ट की यहाँ से, तो यहाँ पर भी जो है तो स्मॉल सा क्वाड्रिलेटरल मिस रोम्बस बनेगा, मिस ये फिगर करेक्ट होगी। इसी तरह 97 में देखें कि क्वेश्चन नंबर 97 में सभी आप हाफ पार्ट को अगर ज्वाइन कर दें इस तरह से, तो देखिए यहाँ भी 2 सर्कल बन रहे हैं, यहाँ 2 सर्कल बन रहे हैं और इधर 2 सर्कल बन रहे हैं। और ये सेमी सर्कल तो इधर के पार्ट में भी ऐसे सर्कल आएगा, यहाँ सेमी सर्कल है तो इधर के पार्ट में भी आएगा, इस तरह यहाँ भी आएगा और ये यहाँ पर भी आएगा। मिस अब आप देख लें कि कौन सा है पैटर्न, तो वो होगा 2। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स,
we have to solve question number 98 to 100 over this pyramids. Observe this pyramid and give the answer of these questions. इस अहराम का मुशाहदा करना है और इन सवालात के जवाबात देना है। स्टूडेंट्स देखिए पिरामिड्स पर इस जो हमने मैट 2019 के जो क्वेश्चंस देखे, इससे पहले भी पिरामिड पर हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, तो मैं आप तमाम की तवज्जो इधर दिलाना चाहता हूं कि पिरामिड्स के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। मीन्स पूरे 100 क्वेश्चन में टोटल 6 मार्क के क्वेश्चन पिरामिड्स पर हैं, तो आप पिरामिड्स की प्रैक्टिस करें। बहुत ज़्यादा सिंपल है स्टूडेंट्स, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपको पिरामिड के अंदर सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। स्टूडेंट्स देखिए मैक्सिमम जो नंबर यहाँ पर है वो 45 तक है। 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से 45 तक। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये 1 3 5 2 है या 13 52 है। 52 तो इसमें है नहीं, इसलिए 5 2 ही पढ़ना पड़ेगा। 13 इसमें है, तो स्टूडेंट्स 13 मतलब यहाँ से स्टार्ट करें 13 और फिर 5 और ये 2, 13 5 2 इस तरह देखें तो इसका रिलेशन इससे सिमेट्री में बैठता है कि देखें 13 फिर 19 25 नहीं जमता है ऐसे, मतलब उसको 1 3 लेना पड़ेगा। देखिए 1 3 5 और फिर 2, 1 3 5 2 इस तरह बन रहा है। तो सिमेट्री में ये 13 19 25 18 13 19 25 और 18 बनता है। देखिए सिमेट्री है इसमें 13 19 25 एंड 18। तो अब इसी तरह आपको देखना है 5 9, मैं अलग पेन से इसको करूं ताकि आपको आसानी से पहचानने आ जाए। 5 9 13 और फिर 8 25 33 41 एंड 32। तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका होगा स्टूडेंट। स्विच टू द क्वेश्चन नंबर 99। 16 30 45। 16 के बाद 30 और 44, 16 30 44 इस तरह से। क्या है हमको सिमेट्री 21 35 38, 21 35 38 इस तरह। देखिए सिमेट्री है इसमें, यहाँ से आप देखें 2 इक्वल पार्ट हो जा रहे हैं। ये इसका यूं समझ लीजिएगा कि मिरर इमेज बन रहा है, ये भी आप कह सकते हैं। 17 31 एंड 43, अब इसका मिरर इमेज क्या होगा स्टूडेंट्स, तो 20 34 और फिर 39 होना चाहिए। 20 34 39 है यहाँ पर, देखिए ये इसका मिरर इमेज होगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 100th क्वेश्चन देखिएगा, रिलेशन 20 28 16 एंड 27, 28 16 27 का देख 21 एंड 23 मिरर इमेज आप बोल सकते हैं यहाँ से, या सिमेट्री है इनमें। नाउ 29 28 एंड 30, 29 28 एंड 30, तो इससे सिमेट्री किसमें होगी स्टूडेंट्स, 35 22 एंड 36, 35 22 एंड 36 देख सकते हैं आप सिमेट्री इसके दरमियान। मीन्स दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस तरह से मैंने आप लोगों तक ये 100 क्वेश्चन लास्ट ईयर मैट पेपर महाराष्ट्र स्टेट के पहुंचाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा।